Hello everyone, I Professor Rahul Mukherjee, I welcome you to Online Shine app and I am going to teach you all the subject logistics and supply chain management. This subject, let me tell you all something about it. It is the most important subject for TY BMS students in final year because in semester 5 जहाँ से TY start होता है, it is the one of the compulsory subjects. Having said so, let me tell you all why am I here specially to teach you all this subject. I am BCom, MCom and MPhil qualified, my students, and I have authored, that is written a book on logistics at TY BMS level. I have written it under Rishabh publication with my respected co-authors. So therefore it somewhere makes me deserving or fit enough to teach you all this particular subject with full of knowledge and also being associated with some of the logistical companies. Now what is logistics? Let me tell you all in this first module, first unit and first chapter. So mainly the first chapter talks about introduction to logistics, which mainly means logistics basically is the process of strategically managing the elements of the supply chain, which starts from production of a particular element or a product or a unit and to make it reach from the place of birth, that is place of production to place of consumption, that is manufacturing unit से market तक पहुंचाने का काम logistics करता है. And the elements which it covers under it is transportation, packaging, material handling, inventory management, and apart from that very crucial and most important warehousing, जो nowadays top पे चल रहा है because of e-commerce businesses all around the world and India. It's one of the major hubs you can say, wherein e-commerce is booming, and therefore logistics has become very crucial subject for you people. Not only for you people, I would say for everyone, because आपने लॉकडाउन में देखा होगा लॉजिस्टिक्स कितना इंपॉर्टेंट था जब देश दुनिया बंद हो चुकी थी और हमारे घरों तक, हमारे लोकेलिटी तक सामान नहीं पहुंच रहे थे, वो चाहे वेजिटेबल्स हो, FMCG प्रोडक्ट्स हो, डेली यूज प्रोडक्ट्स या एनीथिंग, मेडिसिन हो, बहुत मुश्किल से पहुंच रहे थे. एंड देयरफॉर लॉजिस्टिक्स को पूरा क्रेडिट दिया जाता है कि उनके बदौलत हमारे तक चीज़ें पहुंच गए. Moving ahead with this, I would like to highlight some importance of logistics, that it is backbone of business because any business serves product or service. Services तो हम जाके लेते हैं या घर बैठे उसका लुत्फ उठाते हैं, बट प्रोडक्ट हमारे तक पहुंचाया जाता है. सो जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स, एनी प्रोडक्ट जो आप आसपास अभी अपने घरों में देख रहे हो या ऑफिस में देख रहे हो या कॉलेज में देख रहे हो, एनी प्रोडक्ट दैट यू आर यूजिंग somewhere has included some kind of logistics from its beginning to the end, that is from its manufacturing stage to make it reach to the markets and finally to you consumers. And therefore logistics is the backbone of any business. It leads to customer satisfaction because it provides the product as and when required. It has a competitive edge for the company. जो कंपनी आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, स्नैपडील से लेके ई-कॉमर्स कंपनीज से लेके जो ऑफलाइन कंपनीज है, विजय सेल्स, क्रोमा, बिग बाजार, डी मार्ट, ये लोग पैकेजिंग पे बहुत फोकस करते हैं कि आपको प्रोडक्ट किस तरीके से दे, इन्वेंट्री किस तरीके से मैनेज करे. पीपल आर लुकिंग फॉर विच प्रोडक्ट्स, व्हाट प्रोडक्ट्स एट व्हाट पॉइंट ऑफ टाइम, इन विच सीजन, इन विच फेस्टिवल एंड देयरफॉर अकॉर्डिंगली प्रोवाइड करते हैं. सो इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल हैंडलिंग से लेके ये सारे चीज़ें कवर होते हैं लॉजिस्टिक्स में. अब तक आपको पता चल गया होगा कि आप भी कुछ ना कुछ रोल प्ले करते हो लॉजिस्टिक्स में आपके घरों में. जब आप एक चीज़ को उठा के कहीं रख देते हो जहाँ पे उसकी ज़रूरत है, wherever it is required, where it should be, placing उसका coverage, making it available, handling it, transporting it, everything comes under logistics. Okay? पहला चैप्टर शुरू करते हुए मैं आपको सेकेंड चैप्टर इंट्रोडक्शन टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट थोड़ा यहाँ पे रिलेट करूँगा और बाकी डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में दूंगा. सप्लाई चेन मैनेजमेंट इज फॉर एग्जाम्पल दूध तबेले में बनता है, ठीक है. वहाँ पे जब गाय से दूध दुआ जाता है, निकाला जाता है, उसके बाद पैस्चराइजेशन होता है, कुछ प्रोसेसेस से थ्रू जाते हैं ताकि वो प्यूरिफाइड रहे, जल्दी ख़राब ना हो जाए. फिर उसको कंटेनर्स में डाले जाते हैं, ट्रकों में लोड किया जाता है या टेम्पोज में या टैंकर्स में. उनके अलग से टेम्परेचर कूल यू कैन से प्रिजर्विंग करने के लिए टैंकर्स आते हैं, उसमें लोड करके उसको मार्केट में डिलीवरी करवाया जाता है. यस और नो, ये सारी चीज़ें मैंने अपने बुक में भी लिखा हुआ एग्जांपल्स के साथ. तो फाइनली हम तक पहुंचता है, फिर दूध वाले उसको अपने टैंकर्स में रखते हैं, स्टोरेज में रखते हैं और पैक करके सील करके हमें देते हैं, वो चाहे पटेल मिल्क सेंटर हो या आपका रिटेलर आपके एरिया में. सो ऑल दोज थिंग्स कम अंडर सप्लाई चेन. इसके दौरान जो भी चीज़ें हुए, मटेरियल हैंडलिंग, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड सो ऑन,
all this comes under logistics. Therefore supply chain management is a broader concept and logistics is a narrower concept. जो उसके छोटे छोटे टुकड़े होते हैं एक सप्लाई चेन में, उसे लॉजिस्टिक्स कहा जाता है. जैसे डब्बा वाला बिजनेस इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सप्लाई चेन, बट उसमें जो सारे एक्टिविटीज होते हैं वो लॉजिस्टिक्स. नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव्स कि हम लॉजिस्टिक्स करते क्यों हैं. सो टू हैव रैपिड response in the market, to make the product reach to the market very soon, minimum variance हो कि आज एक प्रोडक्ट 2 दिन में पहुंचता है, कल 6 दिन में, मतलब कुछ तो तकलीफ है लॉजिस्टिक्स में. इन्वेंट्री मिनिमम से मिनिमम हम स्टोर करें कि जब चाहिए जस्ट इन टाइम पे ऑर्डर करके हम उसे पा सकते हैं. मूवमेंट कंसोलिडेशन की फॉर एग्जांपल ये हम ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर में बेहतर सीखेंगे कि एक ट्रक जा रहा है पुणे की तरफ मुंबई से, तो वो ट्रांसपोर्टर के पास अगर 3-4 प्रोडक्शन वालों का कांटेक्ट है तो वो सबको पूछेगा कि किनको अपना सामान वहाँ भेजना है, तो सबको सस्ते दाम में अपना ट्रांसपोर्टेशन वहाँ पहुँचाने का टाइम मिलेगा. क्वालिटी मेंटेन करना है गुड्स का, तो टाइम टू टाइम लॉजिस्टिक्स, रॉ मटेरियल अवेलेबल होना चाहिए, प्रोसेसिंग होना चाहिए, एंड फाइनली लाइफ साइकिल सपोर्ट. कोई भी बिजनेस का आज के दुनिया में लाइफ साइकिल सपोर्ट इज लॉजिस्टिक्स, बिकॉज चीज़ें, सामान, एक जो कॉन्सर्ट होता है, इवेंट होता है, उसमें भी अगर माइक, डेस्क, टेबल, कपड़ा, कर्टन्स, डेकोरेशन, ग्रीन रूम, सेलिब्रिटी रूम, ये सब, वैनिटी वैन, ये सब नहीं पहुंचा, ये सब पार्ट एंड पार्सल ऑफ लॉजिस्टिक्स है, तो तकलीफ हो जाएगी. कुछ प्रॉब्लम्स है लॉजिस्टिक्स में, वो भी हमें समझना है कि हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल कभी कभी हो जाता है, बहुत पैसा लगा देते हैं लेकिन रिटर्न उतना नहीं आता. कभी कभी प्रोडक्ट्स डैमेज हो जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन के टाइम, कभी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, ब्लैक मार्केटिंग होता है, कुछ चीज़ का आर्टिफिशियल शॉर्टेज हो जाए, उस वजह से हमें संभालना है उस चीज़ को. लॉ एंड ऑर्डर स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ता है व्हेन इट कम्स टू ट्रांसपोर्टेशन नॉर्म्स, पैकेजिंग नॉर्म्स एंड मैनी सच थिंग्स. एक्सप्लॉयटेशन बहुत सारे चीज़ें होते हैं, स्मगलिंग होता है. लॉजिस्टिक्स अगर प्रॉपरली हो ये सारे चीज़ें होने में अवॉइड करता है. इंपॉर्टेंट फंक्शंस, एलिमेंट्स, लॉजिस्टिक्स मिक्स, फैक्टर्स और कंपोनेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है. इसमें मैं आपको एक छोटा सा टिप दूंगा क्योंकि मैंने बुक लिखा है मेरे को ऑथर्स के साथ, तो एक बेसिक आइडिया दूंगा जो आपको इंडेक्स में, हमारे बुक में या कोई भी बुक में, कोई दूसरे पब्लिकेशन के भी बुक में आपको जो टाइटल दिख रहे हैं ना इंडेक्स में, दैट इज ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग, पैकेजिंग, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड मैनी मोर, जो आपको लाइन बाय लाइन नीचे दिख रहे हैं, ये है एलिमेंट्स ऑफ लॉजिस्टिक्स. ओके, सो यू कैन राइट दिस आंसर अकॉर्डिंगली इन योर ओन वर्ड्स. आपको प्रैक्टिकली समझाए तो आप पॉइंटर्स को अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन कर सकते हो कॉन्सेप्चुअली इन एग्जाम. गिविंग सम एग्जाम्पल्स जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, मेरे सारे वीडियोज़ में आपको ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे. देन कम्स इनबाउंड एंड आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स, जो लास्ट के 2-3 मिनट्स में शेयर करूंगा. इनबाउंड लॉजिस्टिक्स तब तक है जब तक एक प्रोडक्शन यूनिट तक मेरा प्रोडक्शन हो रहा है और उसके लिए मैं शुरू करता हूँ रॉ मटेरियल लाने से लेके लेबर उस पे काम करता है, मटेरियल हैंडलिंग होता है, वहाँ तक का प्रोडक्शन रेडी हो जाता है पैकेजिंग करके. घर के अंदर तक का स्टोरी, फैक्ट्री के अंदर तक का इनबाउंड लॉजिस्टिक्स. आउटबाउंड इज प्रोडक्शन रेडी है, अब डिस्पैचिंग के लिए उसको हम ऑफलोड उतारना होता है, हम लोड करते हैं ट्रकों में, टेम्पोज में, ट्रांसपोर्टिंग व्हीकल में, ट्रेन्स में, कंटेनर्स में, एंड दैट इज आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स. वहाँ से लेके बाहर तक comes under outbound logistics. So pre-manufacturing activities inbound logistics, post-manufacturing outbound logistics. There are 3 important C's in logistics, वो बता दूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. 1 is कस्टमर, जिनको सबसे अच्छा सर्विस देना होता है. 2nd is कंपनी, जिनके थ्रू हम सर्व कर रहे हैं, या हमने एज अ लॉजिस्टिक्स कंपनी कोई पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का रेस्पॉन्सिबिलिटी लिया है और उनका टाइम टू टाइम हम पैकेजिंग, डिलीवरी, इन्वेंट्री मैनेज कर रहे हैं, ऑर्डर्स को मेंटेन कर रहे हैं. एंड लास्ट इज कॉम्पिटिटर का तो ध्यान रखना ही पड़ता है, नहीं तो हम बिजनेस में आगे फ्लरिश नहीं कर पाएंगे. सो उनके अकॉर्डिंग हमें अपना बिजनेस स्ट्रैटेजी फ्रेम करना होता है. एंड टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर टॉपिक, दैट इज फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट चैप्टर इज लॉजिस्टिकल कॉम्पिटेंसी. नेटवर्क डिज़ाइन करना होता है अगर हमें लॉजिस्टिक्स में एक कदम आगे रहना है. कॉन्टैक्ट्स बिल्टअप करने होते हैं कि जैसा मैंने कहा, एक ट्रक अगर कहीं ट्रांसपोर्टेशन करने जा रहे हैं तो मेरे पास 4-5 क्लाइंट होने चाहिए उस एरिया के लिए, सो दैट मेरा भी कम से कम खर्चा हो जाए क्योंकि 4-5 लोग उसमें पैसा डालेंगे. इन्फॉर्मेशन मैनेज करना है हमें, ऑर्डर अच्छे से मैनेज करना है, कब कौन सा ऑर्डर आ रहा है, कितना फ्रिक्वेंटली एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का ऑर्डर आ रहा है, उतना इन्वेंट्री मैनेज करना है, ट्रांसपोर्टेशन स्मूथली मेंटेन करना है, पैकेजिंग हैज़ टू बी प्रॉपर, मशीन्स प्रॉपर होने चाहिए, लेबर प्रॉपर होना चाहिए, वेल ट्रेंड होने चाहिए, वेयर हाउसिंग, ये सब चीज़ें हम आगे अपकमिंग चैप्टर्स में डिटेल में पढ़ेंगे. वेयर हाउसिंग कितना परफेक्ट होना चाहिए, कैसा मैनेज होना चाहिए, सॉर्टिंग एंड फिल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, मेकिंग थिंग्स अवेलेबल व्हेनेवर एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड एंड सो ऑन. एंड फाइनली प्रॉपर एंड एफिशिएंट मटेरियल हैंडलिंग. तो इन सब टॉपिक्स पे एक एक चैप्टर है जो डिटेल में पढ़ेंगे. ये
अगर परफेक्ट रहा तो हम कंपटीशन वाइज लॉजिस्टिक्स में काफ़ी आगे रहेंगे और अच्छा परफॉर्म करेंगे. दैट्स इट फ्रॉम माय एंड इन द फर्स्ट मॉड्यूल, फर्स्ट चैप्टर ऑफ लॉजिस्टिक्स. होप सो आपको क्रिस्प एंड शॉर्ट तरीके से इंट्रोडक्शन समझा होगा कि हमारे आसपास हर जगह लॉजिस्टिक्स है. न्यूज़पेपर वाला घर पे पहुंचाने तक, दूध वाला से लेके हर सब्जी जो मार्केट में आती है, मुंबई में एपीएमसी मार्केट से सब्जी आती है, वाशी से पूरे मुंबई में, ये सब लॉजिस्टिक्स का पार्ट है. वो नहीं हो तो हम नहीं होंगे, बिजनेस नहीं होगा, हमारा घर मुश्किल से चलेगा. ठीक है. सो सी यू ऑल इन द सेकेंड चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट. ठीक है.